आज हम लोगों के डिस्कशन का आर्टिकल ये विवेकानंद जी के ही ज्ञान योग का एक आर्टिकल है, रियल एंड एपरेंट मैन, वास्तविक, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या, वास्तविक एंड व्यावहारिक मानव, लेकिन मानव नहीं, प्रातिभाषिक मानव होना चाहिए। जो भी हो, इसकी समरी करेंगे, इसका सारांश करेंगे श्री दीपक सेंगवाल। ठीक है, आइए दीपक जी। हाँ भाई, प्रणाम चलो। महाराज। हाँ दीपक जी, जी जी हाँ महाराज। चलिए। The real and the apparent man. Man has always wanted to know where he goes even after the dissolution of his body. Various theories in this regard have been propounded. I shall try to harmonize the various जरा thoughts on जोर से the बोलो, subject. जरा जोर से बोलो, धीरे धीरे बोलो, जी महाराज, जी महाराज. धीरे धीरे बोलो, On the जरा जोर subject, से बोलो। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज. On the subject as they have हाँ come ओके। up from time to time among Indian philosophers with the modern scientific thought, the Vedantic philosophy searches that one by knowing which everything else is known, as through the knowledge of one lump of clay, all that is of clay is known. According to Hindu philosophers, the whole universe can be resolved into one material called Akasha. Everything we see, touch, feel, liquid, solid, gas is composed by this Akasha. What is the force that acts upon this Akasha? There exists a universal power manifesting as force, attraction, even as thought, which is called prana. This prana acting upon Akasha is creating this whole universe. By the action of prana upon Akasha comes the various celestial systems, suns, moons, stars, earth, human beings, animals, plants, and the manifestations of all various forces and phenomena. Thus, every manifestation of power is this prana. Every material manifestation is akasha. When this cycle will end, the solid will melt into a finer or liquid form, then melting to gaseous and further to finer and uniform heat vibrations, finally melting back into original akasha. And what we now call attraction, repulsion, and motion will slowly resolve into original prana. Then prana will again emerge to throw out all those forms after a sleep period. This process of creation keeps on repeating. In language of modern science, it is becoming static during one period, becoming dynamic during another period, and this has gone through eternity. Beyond that, the research of physical science cannot reach. The ancient Indian philosophers have resolved the universe in akasha, matter, and prana, energy. Both can be resolved into still higher entity called mind or mahat. It is through the mahat, the universal thought power, that these two have been produced. By combination of these two, the whole universe has been produced. With every sense we have, there is first the external instrument in physical body, behind that there is the organ, yet these are not sufficient. Suppose while in an engaging conversation a bell rings, but perhaps you will not hear the bell ringing because the pulsation of sound came to your ear, struck the tympanum, the nerves carried the impression to the brain, but still you did not hear the bell because something else was wanting. The mind was not attached to the organ. Therefore, attachment of mind decided that whether the news through the sense organ is received or not. Yet, even that does not complete the whole process because the news should be reacted upon by the intellect. When it is presented to it by the mind, the intellect then groups the news in relation to pre received impressions and sends a current of reaction. And with that reaction comes perception. Here, then, is the will. Yet, even this does not complete the process. As to see a picture projected out of a camera, a stationary object like a cloth is required to gather, unify, and coordinate the rays of light. Similar is the case with sensations, which further projects such received impression to something motionless and permanent, upon which all such impressions are grouped and form into unity, which completes the process. This is called the soul of man. We have seen that Akasha and Prana came out of universal cosmic mind, behind which there is a soul that exists.
and it is called God. Similarly, at individual level, behind mind, You there know, exists the soul your of man. voice is not coming clear. There is some problem in connection. एक सेकंड महाराज. हेलो. It is breaking. महाराज आ रही है अब? संजय देखो तो भाई. वो आप माइक्रोफोन के पास थोड़ा मुंह ले लीजिए सेमवाल जी. हाँ जी. मे बी दैट विल आ रही है जी, आ रही है सर, आ रही है. आ तो रही है. चलो चलो शुरू करो, फिर से करो. We have seen that Akasha and Prana came out of universal cosmic mind behind which there is soul that exists and it is called God. Similarly, at individual level, behind mind there exists the soul of man. At universal level, the universal soul itself evolves as mind, thereafter splitting into Akasha and Prana. It is also the same for individual man. Opinions in this religious world are divided on this. The dualists hold that the soul is qualified, having qualities of feeling, enjoyment, pleasure, and pain. The non-dualists deny of soul having any such qualities. The soul of man, because it is separate from mind and body, because it is not composed of Akasha and Prana, must be immortal. That alone, which is not the result of composition, can never become decomposed, and therefore can never die. When this body falls off, the soul lives on. According to with the Vedantists, when this body dissolves, the vital forces of man go back to his mind, into the prana, and enters into the soul of man. The soul of man comes out clothed, as it बहुत were. टूट रही है भाई, आवाज बहुत टूट रही है. Hello. सुनाई नहीं दे रहा. I think it needs to be louder. Louder and slow. एक मिनट, मैं रिकनेक्ट करूं. No, you have to be louder. एक सेकंड सर, एक सेकंड. और जरा slow भी बोलिए. हाँ जी, हाँ जी. The soul clothed along with these impressions and the fine body is guided to its destiny based on all different forces represented by different expressions. There are three different goals for the soul. Those who are very spiritual, when they die, first reach the solar sphere, then to the sphere of lightning and meet with an already blessed soul, which guides the newcomer forward to Brahmaloka. Now, as per dualist, the soul is in this loka becomes powerful as God himself and lives there forever. But as per non-dualists, they become one with universal, thereby ending the cycle. The next of persons are the ones who do not do good with selfish motives. When they die, they reach the sphere having various heavens. There, such persons acquire fine bodies, bodies of gods. They live there for a long period, after which they fall back to earth to give a new living body. The last class, that is the wicked ones, remain in middle of the earth and lunar sphere in form of ghosts or demons for some time and fall back on earth and become animals. After living in animal body for some time, they again become men, thus again getting a chance to work for their salvation. A man's soul reaches different spheres based on his good or bad karmas done on this earth. If there is an extraordinary good or evil karma, it bears fruit quickly. For instance, a man doing evil work all his life will get an immediate result of his good karma, but after the good result ends, the evil karmas must produce their result. Thus, as per the Vedanta philosophy, man is the greatest being in the universe. All others, be it angels or gods, have to become man if they want to become perfect. There is another aspect of philosophy to the whole theory of soul that has just been propounded. The Buddhists do not admit the third substance, which is beyond the mind and the body called soul. According to the Buddhists, let there be only mind and body. Body is the name of a stream of matter continuously changing. Similarly, mind is the name of stream of consciousness or thought continuously changing. The universal phenomenon of body and mind is all that really is. There is no need to posit something that is soul behind it. The central idea of most of the Buddhist philosopher is to take the world to be itself all sufficient. There need not be any background at all. These arguments appeal easily to ordinary experience of humanity.
So we find that there are two opinions. The first one is that there is something behind the both body and mind, which is an unchangeable, immovable substance. And the other is that there is no such thing as immovability or unchangeability in the universe. The non-dualist thought gives solution to this problem. We can only conceive changeable by knowing something less changeable, and this also must appeal more changeable in comparison with something else which is less changeable, and so on until we are bound to admit that there must be something which never changes at all. So far as the Buddhists say that the whole universe is a mass of change, they are perfectly right. So long as I am separate from the universe, so long as I stand back and look at something before me, so long as there are two things, the looker on and the thing looked upon, it will appear always that the universe is of change, continuously changing all the time. But in reality, there is both change and changeless in this universe. It is not that the soul, mind, and body have different existences, for this organism made of these three is really one, but these three are not same at any particular point of time. He who sees body does not see the mind, and who sees the mind does not see the soul. Like a rope, when perceived as a snake by man, for him the rope has vanished, but when delusion ceases, the rope is rope and the snake has vanished. The self or substance or soul is in language of non-dualism is the Brahman appearing to be manifold by the interposition of name and form. As in reality there is no difference in a wave and the sea, but the wave appears to be different by the form and the name given to it. There is therefore but one Atman, one self, eternally pure, eternally perfect, unchangeable, unchanged. Upon its name and form have painted all these dreams. It is the form that make the wave different from the sea. This name and form is outcome of what is called Maya. It is Maya that is making one individual appear different from other, yet it has no existence. According to the Advaita philosophy, then this Maya or ignorance or name and form, or as called in Europe, time, space, and causality, is out of this infinite existence, showing us the manifoldness of universe. In substance, this universe is one. For a non-dualist, no one goes to heaven or becomes ghost or animal. None comes and none goes. You are infinite, as answered by a little girl to his teacher when being asked as to why does the earth not fall if there is gravitation, to which she answered with another question, that where shall it fall. Likewise the very question of birth and death with regard to the soul is utter nonsense. Where is to go or where is not to go? Omnipresent is the self of man. So for the perfect, all such illusions go immediately. For nearly perfect, it vanishes after showing them several scenes up to Brahmaloka, but it continues for the ignorant. This whole nature is like a book before the soul. Chapter after chapter is being read and turned over. Every now and then a scene opens that is read and turned over. A fresh one comes, but it is ever the same, eternal. It is nature that is changing, not the soul of man. This never changes. In worshipping God, we have always been worshipping our own hidden self. The worst lie you ever tell yourself is that you were born a sinner or a wicked man. Sinner is one who sees sinner in another man. So the wicked see the universe as hell, and the partially good see it as heaven, while the perfect being see it as God Himself. When the veil falls from the eyes, and the man, purified and cleansed, find his whole vision changed. All delusions cease, miseries vanish, birth goes away, and with it death, pain fly, and with them fly away pleasures. Earths vanish, and with that vanishes the heavens. Bodies vanish, and with them vanishes the mind. Even as clouds come, remain for some time, and then get vanished before the sky, which remains constant and unaffected, so is before the soul all visions of earth, heaven, pleasure, pain, and gods, etc., come, stay for a while, and get vanished. But the soul remains constant, unaffected, and limitless, just as the sky.
The real man is one unit existence. Now the question arises that is it possible to realize philosophy in practicality? Are there such realized men still living? And do they immediately die after such realization? It is like two wheels running and joined together by a pole. Cutting one wheel will stop the momentum after a little while. Similarly, the wheels of hallucination of body and mind are connected with the other wheel of pure perfect being, the soul. Both are connected by the pole of karma. When the wheel of soul is axed with the knowledge, the other wheel of body and mind will have the momentum for some time until stopping completely. The soul then becomes free. This is the goal of the Vedantin, to attain freedom while living. During the travel to Western India on foot, I every day crossed through the deserts and was mesmerized to see clear and beautiful lakes. But one day, when I wanted to quench my thirst from one such lake while approaching it, it just got vanished. Then I realized that this is a mirage. In the same way, we experience day after day, month after month, the mirage of the world. Under the influence of new knowledge, the strength of karma will be broken. The mirage will be known. This world will not be the same world as before. You may find many fools in this country at present time saying, I am not bound, I am God Himself. Let me do anything I like. This is not right. Although it is true that the soul is beyond all laws, physical, mental, or moral, within law is bondage, beyond law is freedom. Man is really free. The real man cannot but be free. It is when he comes into the world of Maya, into name and form, that he becomes bound. Will can never be free. It is only when the real man has become bound that his will comes into existence and not before. Thou evil and good are both conditioned manifestations of soul, yet evil is the most external coating, and good is nearer coating of the real man, the self. And unless a man cuts through the layer of evil, he cannot reach the layer of good. And unless he passes through the both the layers of good and evil, he cannot reach the self. You must remember all the difference between realization and mere talking. Any fool can talk, even parrots talk. Talking is one thing, and realizing is another. Philosophies, books, theories, churches, and sects, all these are good in their own way. But when realization comes, these things drop away. Until you have attained realization, there is no difference between you and atheists. The atheists are sincere, but the man who says that he believes in religion and never attempts to realize it is not sincere. The question is to know what comes after realization, what good it will do to the world. It is like the question it is like the question by a baby wanting cookies to a person who is investigating on the subject of electricity. Does it buy candies? No, he answers. Then what good will it do? Says the baby. This is what men mean by doing good to the world. Yet religious realization does all good to the world. For a realized man, that which is painful and miserable will all vanish. Struggles will all depart and go. This will be great resulting from such realization that instead of this world going on with all its friction and clashing, if all mankind today realizes only a bit of this great truth, world will be changed, and in place of fighting and quarreling, there would be reunion. This is the great utility of divine realization. Everything you know in the society will be changed and transfigured. No more will you think of jealousy and punishments. They will all vanish. And love, the great ideal of love, will be so powerful that no whip and cord will be necessary to guide mankind. All right. महाराज हो गया जी प्रणाम महाराज महाराज सुन पा रहे महाराज हो गया महाराज अनम्यूट कर लीजिए महाराज यू आर म्यूट आप अनम्यूट कर लीजिए महाराज
ठीक है, ओके ना। तो पहले स्वामी जी ड्युअलिटी से, द्वैत से शुरू करते हैं। कहते हैं आकाश है, उसके बाद में फिर पंचभूत हैं, फिर प्राण है, उसके बाद आत्मा को लाते हैं। ये तीन चीज करती है। इसके बाद धीरे धीरे करते करते वो कहते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है, और बाद में फिर वो अद्वैत पे आते हैं। वो कहते हैं कि एक ही सत्ता है, एक अद्वैत है, और बाकी सब जो है वो मिथ्या की बात आ जाती है। कि रस्सी जो है, तो रस्सी सांप दिखती है तो सब रस्सी नहीं दिखती। इसी प्रकार हमें ये संसार दिख रहा है, तब तक सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन और कुछ के पीछे जो आत्मा है वो नहीं दिखा देती, चैतन्य नहीं दिखा देता। फिर स्वामी जी ये कहते हैं सच पूछा जाए तो एक ही दिखता है। जब रस्सी दिखती, सांप दिखता है, तब रस्सी नहीं दिखती। तो इसीलिए अल्टीमेटली वो एक पे ही आके बात करते हैं। तो वही जो एक सत्ता है, परमात्मा है, वही है रियल मैन। और जो बाहर की तरफ बना हुआ है, यह है अपरेंट मैन, प्रतिभाषिक मानव। बहुत सुंदर है ये। अब इसमें प्रश्न शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले शुबीर, आर यू रेडी? प्रणाम महाराज, आई एम रेडी। हाँ चलो। महाराज, पहला सवाल है, इन दिस आर्टिकल Swamiji speaks of the dualist, non-dualist, and Bhagwan Buddha's philosophies. Now, my question is, if the highest attainers of spirituality all reach a single truth, because after all, truth is one, then there are such different. Why is there such different explanations given by each one of them about the same truth? Why do we not see a singularity? अरे इसका उत्तर तो श्री रामकृष्ण कितनी प्रकार से देते हैं, बोलो। ओ ब्लाइंड मैन ने एक हाथी को देखा, तो एक ने कहा दीवार जैसा है, एक ने कहा खंबे जैसा है, एक ने देखा रस्सी जैसा है। तो श्री रामकृष्ण तो बार बार कहते हैं। फिर कहते हैं कि एक प्राणी है, उसको कोई पीला देखता है, कोई लाल देखता है, सफेद देखता है। वो जो वो क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हो, वो गिरगिट। तो वो तो रंग बदलता रहता है। तो क्या करेंगे आप? एक ही सत्य को प्रत्येक अपने व्यक्ति, अपने कल्चर और माइंड के अनुसार वो देखता है। क्रिश्चियंस जो हैं अपने कल्चर के अनुसार उस सत्ता को देख रहे हैं। मानव जो है, जैन है, उसी सत्ता को एक प्रकार से देख रहे हैं। बुद्ध एक प्रकार से सत्य को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदू कर रहे हैं, और हिंदुओं में भी तो कितने प्रकार हैं भाई। हाँ महाराज, वो शिव के एक प्रकार से बात कर रहे हैं, फिर विष्णु एक प्रकार से बात कर रहे हैं। तो क्या करोगे? ये तो डिस्क्रिप्शन होगा ही। हम अपने मन के द्वारा एक ही सत्य को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये ठाकुर ने बार बार कहा। should not be any difficulty about it. हालांकि सब एक ही जगह जाके पहुंच रहे हैं, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है महाराज, ये तो इस आर्टिकल के द्वारा हो रहा है। ठाकुर ने बार बार कहा है, लेकिन जो मुसलमान वो कहेंगे कि नहीं, ये जो हिंदू हैं वो नरक में जाएंगे, तो हिंदू कहेंगे कि मुसलमान नरक में जाएंगे। अब क्या करोगे बाबा? ये ठाकुर नहीं बोला, बाकी तो सब लोग नरक की बात करते हैं ना, क्या करोगे? जी महाराज, ठीक है महाराज। सेकंड सवाल है महाराज, when I'm in good physical and mental health, I feel thankful to God that He has kept me in a condition where I can breathe, where I can take His name, do japa as often as possible. Again, when I'm in distress, physically or mentally, I take solace and strength by telling myself that I am the Atman, I am imperishable, and that gives me a lot of strength. With which idea should one try to live constantly? तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मतलब ये दो आइडियाज है ना, कि जब हम वी आर इन गुड फिजिकल कंडीशन, तो हम ठाकुर का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब हम अच्छी कंडीशन में फिजिकली या मेंटली नहीं होते हैं,
तब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। तो कौन सी आइडिया लेके हमें रहना चाहिए हर वक्त? अरे ठाकुर क्या बोलते हैं? ईश्वरी सत्य बोलते है, हैं क्या है, वो तो बिल्कुल साफ ही बोलते हैं। ईश्वरी सत्य है, बाकी सब नहीं अनित्य नहीं, है। जब मेरे पेट में दर्द होता है तब मैं मामा करता हूँ, स्वामी जी खुद बोलते हैं कि मेरे को पेट में दर्द होता है तब मैं मामा करता हूँ, और जब मेरा बिल्कुल साफ होता है मन तो अहम ब्रह्मास्मि करता हूँ। तो ये दोनों को तो लेके ही भाई जीना पड़ता अरे सबको लेके चलो ना, उसमें क्या है। सबको नुकसान है? लेके, लेकिन एक जानो कि जो कर रहे हो वो सब एक ही है। जी जी। तुम तो कहते हो बीमार होने पर तुम वेदांत की चर्चा करोगे, ये कैसा होगा? उल्टा। बिना बीमार होने पर तो माँ करते हैं। ठाकुर जो है यूं तो वेदांत की चर्चा करते हैं, किंतु हाथ में एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो बोलते हैं माँ बड़ो लागचे, माँ मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, माँ इसको ठीक कर दे। तो जब हम लोअर लेवल पे आएंगे तो भगवान को आप माया बना लीजिए, उच्च स्तर जी पे जी आ जाए तो परमात्मा को ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि करिए, इसमें क्या नुकसान? जी महाराज। याद रखिए कि सब एक ही है, अल्टीमेटली दे आर ऑल वन, ये याद रखना जरूरी है। जी जी जी। और देह जो है वो मैं नहीं हूँ, है ना, देह जाने दुख जाने, जी, मन तुम्हें हमें आनंद थाको। हाँ हाँ, ठीक है महाराज। तो देर आर वेरियस एटीट्यूड्स। ठीक है महाराज। On page 282, third question, Maharaj ji. On page 282, in the middle part of the page, somewhat, Swami ji कहते हैं, these fears and devils and gods and reincarnations and transmigrations, ये सारा mythology है. Gods, reincarnation, transmigration, ये सब mythology कहते हैं वो. तो मैं कहता हूँ सर महाराज जी, if this be the truth, then knowing this theoretically, what should be our attitude? How can we suddenly accept कि ये सारा mythology है? क्योंकि हम तो इसी सब को लेके जी रहे हैं सारा जिंदगी। तो how can we just throw it off? हम theoretically इसको कैसे मान के तो चले? स्वामी जी ने ये कहा है माइथोलॉजी को फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ। अरे अच्छा हमारा मन जो है उसके आगे नहीं जा सकता। हम भगवान अच्छा की क्या कल्पना जो है, एक मानव यदि कल्पना करेगा भगवान की तो एक मानव के रूप में करना पड़ेगा, और अगर एक गाय भगवान की कल्पना करेगी तो बड़ी गाय के रूप में भगवान की कल्पना करेगी। जी जी तो ये भगवान की कल्पना के बिना तो काम नहीं चलता। और विष्णु को बना लिया भगवान, हमने विष्णु को बना लिया तो विष्णु के अपने पुराण विष्णु पुराण कर दिया, और शिव जी का शिव पुराण है। अब तो ये पुराण बढ़े ही है, कहानी बढ़ती चली जा रही है, और टीवी पे भी निकलती चली जा रही है ये सब कहानियां। तो क्या करोगे भाई, बोलो? हाँ तो ठीक इसके है सिवा महाराज। तो उपाय नहीं है, हमारा मन यही चाहता है। तो एक किसी को लेके रहो बस, वो यानी इसका एक मतलब, चीज को ले लो, जी जी, एक एक को ले लो और उसका चिंतन करो। इसको देखो ये भी ऐसा है कह ना, सकते हैं। कितनी जी सारी महाराज। स्टोरी है। सुनो सुनो, रामायण जो है वो सारे हिंदुओं को प्रभावित करती है, हिंदुओं का आधार है वो, जी पुराण महाराज। होते हुए भी। जी 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 हनुमान जी बिल्कुल। उड़ के चले गए, जी रावण के 10 सिर थे। अब इसको क्या सत्य मान सकते हो? ये तो पुराण है, जी 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 लेकिन फिर भी ये आधार है तो। बिल्कुल और आधार है, इसको पकड़ के चलना है भगवान बिल्कुल। राम का ध्यान रखते हैं ना, जी महाराज हाँ, बिल्कुल। उससे वी क्या हैव टू, फर्क पड़ता है? हाँ, वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर That's ट्रुथ। all right. At whatever level you are, just remain at that level. हाँ If you are need of mythology, तो राम की सारी लीला का चिंतन करो ना, क्या नुकसान है? उसके बाद में जी जी धीरे धीरे जब सब चले जाएगा। देह बुद्धिया तो दासो हम, आत्म बुद्धिया तमेव हम। जब आत्म तत्व चिंता आएगी तब आत्मा राम राम नहीं रहेंगे, राम और आत्मा एक हो जाएंगे। जी महाराज बिल्कुल वही So there लोअर should not ट्रुथ। be mythology. हाँ हाँ बिल्कुल, लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ, जैसे स्वामी जी भी कहते हैं वही सेम थी। जी महाराज। महाराज लास्ट क्वेश्चन है ऑन पेज 290। स्वामी जी स्पीकिंग ऑन रियलाइजेशन talks about what good it does to the world. He says, if all mankind realize only a bit of that truth,
the aspect of the whole world will be changed. Now, can there be a realization of a bit of the truth? Realization can be either अरे क्यों नहीं zero. होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ realization अरे is क्यों either नहीं होगा? वो रियलाइजेशन और ईगो को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मतलब स्वामी realization तो full विवेकानंद होता है, कंप्लीट वर्क्स है partial ना, realization. How सुनो can there सुनो be सुनो, partial realization, महाराज जी? Partial कंप्लीट कैसे? वर्क छोटा छोटा रियलाइजेशन भी होता है। स्टेप अब अच्छा। रोज कंप्लीट वर्क्स और स्वामी विवेकानंद पढ़ो, तुम कर्मयोग पढ़ो, राजयोग पढ़ो, या लेक्चर सम कलमोड़ा पढ़ो 1 घंटा, देखना तुम्हारे जीवन में चेंज आ जाएगा। तुमको लगने लग जाएगा कि मैं गॉड हूँ, आई एम गॉड। स्वामी जी तो कंटिन्यूसली कहते हैं ना, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। तुम क्या जी। रियलाइजेशन के लिए बैठे रहोगे सारे जीवन? दिस इज व्हाट आई से, वन लिटिल स्मॉल लिटिल रियलाइजेशन दैट आई एम गॉड। ये विश्वास, ये कल्पना, इवन इमेजिनेशन, कल्पना, व्हाटएवर यू से। अरे हम तो स्वामी जी को पढ़ पढ़ के ही तो फर्स्ट क्लास आ जाते थे। कितने लोग हैं जो स्वामी जी को पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने आप को महान समझने लग जाते हैं? इसमें क्या नुकसान है? जी महाराज जी। व्हाट इज योर क्वेश्चन इन दिस डायरेक्शन? हाँ, मैं सोच, आई एम गॉड, ऑल स्ट्रेंथ इन मी। नहीं, मेरा सोचना पहले था See, कि you say if I am realization. God, I am strength in me. जी No, forget about realization. I am जी। God, all strength in me. Right. Then what happens? You become a better doctor, you better student, better जी। student. Yes. Do every day. Now what is your question? Don't worry about the realization. हाँ महाराज, अब क्वेश्चन तो अब रहा ही नहीं ना, आपने क्लियर कर दिया। क्योंकि गीता में भी कहा है ना, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महते पाया। वो भी यही सेम चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। सेम थोड़ा सा भी करो तो उसका फल होगा। तो अब तुम बोलते हो कि पूरा रियलाइजेशन, अरे करो ना, थोड़ा सा तो करो। पूरा रियलाइजेशन तो पता नहीं कितने जन्मों में होगा। जी। So we shouldn't bother about full. हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज। शिवानी, प्रणाम महाराज। तुम्हारे तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, दम नहीं है उसमें। हाँ करो तो। महाराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आत्मा, सोल एंड प्राणा? अरे आत्मा यानी सोल। आत्मा एंड सोल, देयर इज वन एंड द सेम थिंग। ओके ओके। एंड प्राण है शरीर है, प्राण तो एनर्जी है। प्राण मेरा चल रहा हूँ, सांस कर ले रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो डाइजेस्ट कर रहा है, ये सब प्राण कर रहा है। तो महाराज देखो शुरू में 3 बातें कही ना। पहला उन्होंने कहा है कि बॉडी, देह, बॉडी है, प्राण, और तीसरा सोल। ये तुम आत्मा कहाँ से ले आए? नहीं, वो मैंने वैसे ही ऐड किया है। हाँ, तो आत्मा और सोल एक है। ठीक। लेकिन प्राण और आत्मा अलग है, जो स्वामी जी ने ऑलरेडी कहा है, अभी आर्टिकल में ही कहा है। पर महाराज सेपरेट है। एनर्जी तो सोल में भी होती है ना? नहीं, सोल को छोड़ दो। अब ऐसा है कि हम तो सब कंफ्यूजन कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, हम तो देह को, एनर्जी को और सोल को हम कंफ्यूजन कर रहे हैं। इस आर्टिकल में शुरू में स्वामी जी ने समझाया है कि 3 चीजें ये भिन्न हैं। मेरी देह है, उसके पीछे प्राण या एनर्जी है, और उसके पीछे एक चैतन्य सत्ता है जिसको मैं आत्मा कहता हूँ। ये 3 चीजें स्वामी जी ने बताई हैं। अब हम जो है वो सब मिक्स कर देते हैं। ठीक है महाराज। सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 273. Do we meditate on this Brahmaloka which is mentioned here, that the spiritual persons after that go in Brahmaloka where all are one and merges into more powerful soul, that is God? किसने बोला तुमको ब्रह्मलोक में स्नान ध्यान करने का? कहीं बोला है या नहीं महाराज, जैसे हमें बताया गया तो वो चीज और ब्रह्मलोक दोनों मुझे सेम लग रहा था, इसलिए पूछा। नहीं, ब्रह्मलोक यानी तो एक रहने का स्थान हुआ। यानी प्राणी घर के स्वर्ग में गए या स्वर्ग के ऊपर चले गए,
तो वो ब्रह्मलोक हो गया एक, इज ए लिविंग प्लेस. Why do you confuse it with anything else? ब्रह्म यदि कहो तो सर्वव्यापी परमात्मा कहो, वो दूसरी चीज होती है. ठीक है. That is not a place for where you live. वो it is present everywhere. अब मैं बैठा हुआ हूँ, टेबल है, कुर्सी है, दीवार है, उस सब के अंदर परमात्मा व्याप्त है. वो सर्वव्यापी ब्रह्म है, वो ध्यान किया जा सकता. ब्रह्म लोक थोड़ी किया जाता. ठीक है. तुम्हारा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं किया हुआ? जी महाराज, हो गया क्लियर. महाराज, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ स्वामी विवेकानंद knows about after the death and before the birth story. All these are mentioned in the Vedas, or he was an enlightened soul, that's why he was aware. वेद में सब है. भगवान, वेद की बात क्या लाते हो? स्वामी जी तो सर्वज्ञ थे, सब जानते थे. स्वामी जी सर्वज्ञ. सप्तऋषि पुरुष थे ना, सप्तऋषि से आए थे. उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, स्वयं के ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा सब जाना था कि वे कहाँ थे, कौन थे पहले. वो सब उन्होंने खुद जाना था, कोई वेद में नहीं था. वेद कहाँ से लाए तुम? उनकी लाइफ पढ़ो ना ठीक से. महाराज, इसमें है ना नहीं, क्या है? प्रैक्टिकल वेदांता है ना, हाँ. इसलिए मैंने पूछे. क्या प्रैक्टिकल वेदांत में क्या है वहां पे? नहीं, उसको रिलेट किया कि शायद ये मतलब वेद वगैरह में लिखा हुआ सारा कुछ, या इसलिए. तो आपने आंसर दे दिया अभी. प्रैक्टिकल वेदांत का क्या मतलब? अभी तो आया नहीं आर्टिकल तुम्हारे पास में, अभी नेक्स्ट टाइम आएगा. पहले आ गया था ना महाराज. हाँ, तो प्रैक्टिकल वेदांत का मतलब क्या है? उसमें कहीं वेद की बात है क्या? वेदांत तो वहां पे फिलोसफी है, वेद की तो बात ही नहीं होती. वहां तो फिलोसफी है कि मैं ब्रह्म हूँ. यही है प्रैक्टिकल वेदांत, है कि नहीं? उपनिषद है कि नहीं? ये भगवान, क्या सब कंफ्यूजन किया है तीनों आर्टिकल क्वेश्चंस में. कुछ इतना, इतनी दिन से बातचीत हो रही है, सब कुछ नहीं डिसाइड कर रही. ठीक है बात. प्रैक्टिकल वेदांत जो भी हो उसको फिर से पढ़ो. ठीक है महाराज. फर्स्ट चैप्टर ना प्रैक्टिकल वेदांत का. हाँ, फर्स्ट पार्ट. तो उसमें तो वही वेद का कुछ लिखा हुआ है क्या? वेद का नहीं ये लिखा नहीं है कि वेदों का अंतिम पोर्शन है प्रैक्टिकल वेदांत, जिसमें फिलोसफी है. और वे फिलोसफी है कि आत्मा है नित्य अजर अमर और परमात्मा के साथ एक है. अद्वैत वेदांत है, उपनिषद है. ये हुआ वेदांत. तो जब ये वेदांत की बात आई तो फिर वो यो वेद की बात कहाँ उठती है? तुम भी अगर प्रतिष्ठित हो जाओगे तो तुम्हें अपने पता चल जाएगा कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे. किसी को भी हो सकता है. ये तो योग की साधना के द्वारा हो सकता है. कहीं पर भी वेद के द्वारा इसके बारे में तो बात कही नहीं गई है इसके बारे में. चले आगे. ठीक है महाराज. एक और प्रश्न किया था बाद में. हाँ, लास्ट में था, जनरल क्वेश्चन था. एज यू सेड, while meditating, try to hear the sound of the Guru mantra while reciting it inside. How we can hear the sound? अच्छा, क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मैं मुंह से बोला हूँ तो कान से सुना है. अगर मैं मन ही मन सुनूं, क्यों नहीं सुन सकता हूँ? उसको मन ही मन बोलो और मन ही मन सुनो. It is very easy. महाराज, ये इमेजिनेशन नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं हो जाएगा फिर. Yes, it is. You may be imagining. Yes, that is true. जैसे आंख से देखकर हम आंखें बंद करके और रूप का इमेजिन करते हैं ना जी. उसी प्रकार मुंह से न बोले हुए भी शब्द जो बोलेंगे उसको हम सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं. पूरी कहानी सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, मन ही मन बात करते हैं. ठीक है, करके देखो. इज नॉट डिफिकल्टी. ठीक है महाराज. स्टैंडर्ड मेथड है. दैट्स ऑल. अच्छा, थैंक यू महाराज. तीसरा दिलीप भाई.
कहाँ हो दिलीप भाई? दिलीप भाई? दिलीप भाई नहीं है। अरे नहीं है, महाराज। दिलीप भाई नहीं है। महाराज, हाँ दिलीप भाई बताए थे कि उनका बेटा आया हुआ है बाहर से, इसलिए आज वो हाँ। देर से ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, जी। चलो। रीता रीता बिस्वाल। Yes, रीता, Swamiji. Yes, अच्छा आ Swamiji. जाओ। ओके, My first question is page 269, first para end. The Swamiji says, from thought being final manifestation, split into Akasha and Prana, that this universal thought that manifested and evolved into the universe. What is that universal thought? We have so many thoughts which cannot be said to be universal. How does one know what this देखो universal thought is? अच्छा अच्छा, ना, देखो देखो देखो, देखो फंडामेंटल थोड़ा आप तुम समझा देता हूँ तुमको। हाँ, वो फंडामेंटल ये है, ये जितनी भी सृष्टि है ना, yes, क्रिएशन, Swamiji. उसके दो पार्ट हैं, एक है माइक्रोकॉस्म और एक मैक्रोकॉस्म। Mike, हाँ, एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। व्यक्ति यानी मेरे मेरे शरीर में पंचभूत है, आकाश है, मन है, प्राण है, ये बात की ना, Yes. क्या किया? yes, मन मेरा शरीर है, उसके पीछे प्राण है, उसके पीछे मन है, उसके पीछे आत्मा है। उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड में, और एक मैक्रोकॉस्म जिसे कहते हैं, व्यष्टि हाँ, में, ये हुआ व्यष्टि यानी व्यक्ति में, और ये समष्टि यानी ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, मैक्रोकॉस्मोस के अंदर, उसमें भी देह यानी सृष्टि है। बाहर जो हम सारा देखते हैं, आकाश और नक्षत्र और सूर्य, Yes, yes. चंद्र, पृथ्वी है, उसके पीछे प्राण है, कॉस्मिक प्राण है, और उसके पीछे कॉस्मिक माइंड है। ये जो कॉस्मिक माइंड होता है, इसको महत कहते हैं। इसको महत कहते हैं, इसको कहते हैं मैक्रो माइंड। मैक्रो यानी बड़ा। रिमेम्बर दिस इज द यूनिवर्सल माइंड, इट इज कॉल्ड महत। और यानी वन क्या होता है, साधना करके क्या करना पड़ता है, हमारे माइंड को, इंडिविजुअल माइंड को उस कॉस्मिक माइंड के अंदर विलीन करना पड़ता है, या इंडिविजुअल सोल हैज टू बी मर्ज टू कॉस्मिक सोल। दैट इज द थिंग दैट इज टू बी डन। सो मेडिटेट करते हैं, अब अपने आत्मा को समझें, और शरीर में हमारे भीतर आत्मा है और परमात्मा बाहर सर्वत्र है। तो यो कॉस्मिक परमात्मा है, और हमारे भीतर है माइक्रोकॉस्मिक आत्मा। अल्टीमेटली इस माइक्रोकॉस्मिक आत्मा को उस मैक्रोकॉस्मिक जो बड़ी परमात्मा है उसमें विलीन करना है। तो ये दो लेवल पे चर्चा हो रही है, ये याद। तीन चीजें यहाँ बताई है। उन्होंने कहा है मन है, प्राण है, शरीर है, प्राण है, मन है, आत्मा है, ये बाहर भी है, पूरे विराट के रूप में भी है, और ये हमारे भीतर भी है। तो विराट शब्द का भी उपयोग इस प्रकार किया जाता है। okay? Yes, Swamiji. Thank you. The second question is page 272, first paragraph. Swamiji explains the dualist view, who believe that soul is immortal and that soul lives on after the body falls off. This whole para is confusing to me. If the soul is immortal, how can it carry sanskaras? No, because it gets because it gets attached to the mind. Mind के साथ attach हो जाता है because of ignorance, because of maya, because of ignorance that attached to the mind, and that's why the sanskaras produce in it. And then it goes on, as long as the attachment remains, the maya remains, it considers itself one with the mind. As a matter of it is soul, there should not be anything. But because of ignorance, because of maya, this continues.
Yeah. Yes, महाराज, Swamiji. महाराज Yes. ये जो आपने विराट का अपने हम लोग जैसे मेडिटेशन में वो कैसे कर सकते हैं? मतलब हमारे बॉडी को कैसे विराट के साथ विलीन करेंगे वो? हाँ, वो यतीश्वरानंद जी कहते थे, हाँ ये सोचो, बिगिनिंग और एंड में कहते थे, ये सोचो कि व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, हाँ सोचो कि एक बहुत बड़ा प्रकाश है, ऑलवेज देयर इज अ ग्रेट, एवरीवेयर देयर इज प्रकाश. हाँ, This प्रकाश. prakash has taken the form of your soul, and it has also taken the form of yourself. हाँ तो प्रकाश ने जो है तुम्हारे इष्ट का रूप धारण कर लिया है, तो जी. तुम इष्ट का ध्यान करो, और तुम भी छोटे हो गए हो, जीव फिजिकल बॉडी हो गए हो, और जब हाँ. मैं पूर्ण हो जाओ, जब कंप्लीट हो जावे, तो तुम अपने परमात्मा, अपने इष्ट को उस विराट में विलीन कर दो, जी. और स्वयं को भी विराट में विलीन कर दो. हाँ, Now जी. it is very difficult since we are not able to do it. That's why we have been given एक आत्मा दे दिया है, एक आपको एक इष्ट दे दिया है, भगवान का रूप दे दिया है, वो ध्यान कर रहे हैं. लेकिन अगर आप आगे यदि जाएंगे, तो हम उसके बाद में उसको विराट करके करने का प्रयत्न करना चाहिए. तो ये मेडिटेशन टेक्निक्स आपको मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैठेगी. जब बैठो, ध्यान करने के लिए बैठो, दूसरे प्रकार से कर सकते हो. अपना इष्ट का ध्यान किया, और उसके बाद सोचो कि ये इष्ट जो है ये परमात्मा के रूप है, ये विराट कर दो इष्ट को. जी. महाराज, एक ही प्रकार का ध्यान करना ही ज्यादा एडवाइजेबल है ना? Yes. मतलब हाँ, एक ही रोज रोज प्रकार का वही ध्यान करने करना से मन में ये एक ही प्रकार का ध्यान, जैसे महाराज कहा ना कि यतीश्वरानंद जी तो इस प्रकार की टेक्निक बताते थे. हाँ Now you जी. can't एक do ही. it, so meditate on your ishta. Continuously do meditation on your ishta, and afterwards you merge your ishta into Paramatma. हाँ, यही हम लोग करते हैं, मतलब बार बार चेंज करने से माइंड भी बहुत ही ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली और फिजिकल फॉर्म पे इष्ट के करने की ध्यान की आवश्यकता नहीं होगी, परमात्मा पे भी ध्यान होगा. जी जी जी. Ultimately, because they are one and the same. हाँ जी. ये आपके गाइडेड मेडिटेशन का टेक्निक हमेशा रहा है. Yes, yes, that is true. And now the third question, Swamiji, page 28, 273, last sentence, and continued on page 274, first para. What does Swamiji mean when he speaks of 3 different goals for the soul? He explains in the next para, but it is not clear to me. If soul is immortal and changeless, how can it have goals? Because because it get attached to the mind and body. ये बॉडी, माइंड एंड बॉडी के साथ अटैच होने के कारण ही सारी समस्या होती है. मैं अपने को सोल तो नहीं समझता, मैं देह समझता हूँ, मैं माइंड समझता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, पाप करता हूँ, पुण्य करता हूँ. मैं सोचता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं कर रहा हूँ. ये दिस इज थ्योरी. हाउ इट कैन बी, because it is because of attachment that this thing hearing. वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा, देव चला जाएगा, भूत प्रेत लोक में चला जाएगा, स्वामी जी कहते हैं ना. Yes, yes. 84 लोक योनि में जाता है. क्यों जाता है? ये अटैचमेंट के कारण जाता है. सोल बिना, यदि आपको पता चल जाए कि सोल तो नित्य मुक्त है, तो फिर कुछ तो दिक्कत नहीं है. यही पता लगाना ही तो सारा साधना का लक्ष्य है. ये जानो कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, उससे फ्री हो, तो वो आप हो जाओगे. नो, आना जाना कहीं नहीं होगा. Yes, Swamiji. Yes, yes. Is that okay? Yes, Swamiji. Then the fourth question, page 279, first para. Here Swamiji gives the non-dualist Vedanta philosophy that the Atman is oneself, eternally pure, and that the various changes in the universe are appearances in that oneself. Here the difference between apparent and real is given. Kindly explain this para, Swamiji. ये तो रियल जो कहा, प्योर इटर्नल एपरेंट बोल दिया ना. हाँ. और जो द्वैत है ना,
हाँ वो ड्युअलिटी जहाँ पे है वो एपरेंट है, डुअलिटी रेगिस्तान जो है वो सत्य है, यस इसमें जो पानी दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है। रियल एंड एपरेंट, ये फंडामेंटल बार बार वही बात तो कह रहे हैं। वही बात बोलते हैं हम। हाँ वही बात बोल रहे हैं, आत्मा को शुद्ध Yes. मानो, जानो कि वही है रियल। ये तुम्हारा देह, बॉडी, माइंड, कंफ्यूजन, ये सब जो है मिथ्या है, यही जानो और क्या। Yes, yes, Swamiji. And the last question, at the very end of the lecture, Swamiji says, "Thou art that." For us, this phrase is only a phrase. How to truly feel that thou art that? वो सच ए ब्यूटीफुल वन। ये एक मेरे पास आया है, एक डॉक्यूमेंट आया है, नागपुर के पुराने संत हो गए थे स्वामी भास्करेश्वरानंद जी महाराज। नंद जी, यस बहुत यस। उच्च कोटि के संत थे वो, कई वर्षों तक वहां रहे। उनका नारद भक्ति सूत्र के ऊपर उनका लेक्चर्स मेरे पास अभी आए हैं, मैं देख रहा हूँ उसको। उसमें वो कह रहे हैं कि गोपियां जब दाऊ आर्ट डेथ हुआ तब क्या हुआ, गोपियां अपने को कृष्ण कहने लगी। गोपियां ये नहीं कहती थी कि मैं गोपी हूँ, मैं कृष्ण हो गई, ऐसी नहीं, वे कृष्ण हो गई थी। अपने को कृष्ण कहने लगी, कृष्ण जैसा कर रही थी। तो दाऊ आर दैट जब हम बोलते हैं ना, तब भी दाऊ रहता है और दैट रहता है। अल्टीमेटली जब दाऊ आर दैट होता है तब ये बोलना नहीं होता। ओहो, आदमी जो है ना वो ब्रह्म ही हो जाता है। ओहो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यस, इट इज रादर डिफिकल्ट। हाँ, गोपियों के माध्यम से मैं अच्छी तरह बड़ा अच्छा समझा उसको। उसमें क्या हुआ, उसमें वो कहती हैं गोपियां जो हैं वो कृष्ण के साथ में फिर एक ही हो गई हैं। वो कृष्ण को खोज भी नहीं रही हैं, कृष्ण जैसी बात कर रही हैं, कृष्ण जैसी खा रही हैं, कृष्ण जैसा नृत्य कर रही हैं। वो कृष्ण अलग हो गए, नहीं, वो और कृष्ण हो गए एक। इसको बोलते हैं thou art that. Very difficult to understand. हाँ महाराज, माँ का भी रामकृष्ण गत प्राणा यही है। रामकृष्ण गत प्राणा, माँ भी ठाकुर के समान ही सब करती थी। रामकृष्ण हो गई थी तो वो उसी तरह पान खा के चबा रही थी, चबाती थी। हाँ, सेम वैसे ही करती थी सब। हाँ, तो वो वहाँ ये नहीं कर रही है कि मैं रामकृष्ण हूँ, ऐसा नहीं बोल रही है। There is no difference there. तो thou art that में ये thou और that का डिफरेंस नहीं होता। नहीं, अच्छा, केवल एक दाऊ होता है, क्या होता है नहीं कुछ। ठीक। थैंक यू स्वामी जी, इट इज नाउ रादर क्लियर। महाराज दिलीप भाई आ गए हैं। वो हैं, दिलीप भाई आ गए हैं? जी जी, आ जाओ दिलीप भाई, आ जाओ तो जरा मैदान में आओ। कहाँ डर के भाग रहे थे? हैं जी महाराज जी प्रणाम। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है नंबर 1। वो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन से कि पता नहीं तुमको समझ में आया कि नहीं, बोलो। Various theories have been propounded, but they based little on truth. On what basis they propounded the theories? And Swamiji propounded the theory on Vedanta philosophy. The first opening chapter का ही है महाराज, चौथी लाइन है। Various theories have been propounded. Swamiji has propounded the theory of Vedanta, while others have which theories they have propounded. वो तो क्रिश्चियनिटी की थ्योरी है, इस्लाम की थ्योरी है। क्रिश्चियन में जो है वो न्यू टेस्टामेंट की थ्योरी है, ओल्ड टेस्टामेंट की थ्योरी है। उनके नाम वाम हमको नहीं मालूम, तो वो उसी उन लोगों के हैं। क्रिश्चियन और मुसलमानों ने अपनी थ्योरी बनाई है, सबकी अपनी अपनी बतावे। हम नाम कहाँ से लाएंगे हम? अब वेस्ट में बहुत सारी थ्योरी है। अच्छा, and every religion has a particular theory. हाँ, जरूर। Okay. हाँ, जरूर। महाराज जी मेरा ये सवाल था
कि every religion has a particular theory, but ultimately they all goes to the समुद्र, यानी सब नदियां समुद्र में जाके मिलती है, वैसे ये सब थ्योरी भी जाके वेदांत में मिलेगी क्या? अब वो किसमें मिलेगी? ये स्वामी विवेकानंद ने मिला दिया वेदांत में। जब मुसलमान लोग कहेंगे कि ये जो हिंदुओं की थ्योरी है, ईसाई की थ्योरी है, ये सब जो है ना जी, ये हमारा जो अल्लाह का जो है ना, मोहम्मद ने जो थ्योरी बनाई है उसमें मिल जाती है, वो ये बोलेंगे। ओके ओके जी महाराज, सो इट्स अ डिस्प्यूट। तुम कहाँ चक्कर में पड़े उनके? नहीं नहीं, बिल्कुल बाहर निकल गया मैं। नाउ या नाउ माय क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लिखा था इसलिए मैंने पूछा, एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन आकाश और थ्रू आकाश, इवन सन एंड मून एंड स्टार्स, ऑल लिक्विड एंड सॉलिड, हाउ इट हैज हैपेंड? सन एंड मून is in the akash, but how it is composed or created? Is prana is the creation of akash? वो प्राण की शक्ति से आकाश जो है ना, एक पहले आकाश, हाँ, उससे प्राण की शक्ति लगी तो उससे वायु आ गई, उसके बाद अग्नि आ गया। अपने कमरे में लेबोरेटरी में बैठे हैं हम, पहले हमने आकाश लाया। अरे ये लेबोरेटरी में हम प्रैक्टिकल भी किया करते थे। हाँ, वह हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिला दो पानी हो गया। ये जो है वो लेबोरेटरी में जो होता है वही संसार में बाहर हो रहा है। ये भगवान कर रहे हैं, ये प्राण की शक्ति के साथ ये एलिमेंट्स को मिला दे रहे हैं और इस प्रकार से सारे जगत की सृष्टि हो रही है। मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि स्वामी जी ने इस आर्टिकल में बताया आकाश इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर आकाश। आकाश है तो सूर्य है, चंद्र है, स्टार। तो मेरा ये पूछना था कि ये प्राण शक्ति जो है वो सुपीरियर देन आकाश? अरे दोनों चीजें अलग हैं बाबा। देखिए मेरा पेट, हाँ, मेरा पेट की बनावट और मेरे खाने का शक्ति, ये दो चीजें अलग हैं। अगर पेट नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खा सकूंगा शक्ति होते हुए भी। यदि आकाश नहीं होगा तो प्राण किसी तरह काम नहीं करेगा। क्या किस पे काम करेगा? ये दोनों चीजें चाहिए। तो सुपीरियर और इंफीरियर क्यों कर रहे हो बाबा? ओके। अब यदि हम वेदांत के ये चैप्टर से अलग जाते हैं वेदांत में, तो वेदांत के नाते हम क्या कहेंगे कि आकाश ब्रह्म है या ये दोनों मिथ्या है। प्राण भी ब्रह्म मिथ्या है और आकाश भी मिथ्या है। केवल एक सच्चिदानंद ब्रह्म है और कुछ नहीं है। ओके जी। ये मिथ्या में पढ़ के दिलीप भाई के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। मेरा तीसरा प्रश्न है, from where the pran has come and where the pran will sleep again. This is the last 4 lines of the page 268. एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ फिर से पूछो भाई। हाँ महाराज, ये पेज 268 के आखिरी 4 लाइन लिखी हुई है। Then this pran is said to sleep for a period, again to emerge and to throw out all of these forms. And when this period will end, the whole thing will subside again. Thus, this process of creation is going down and coming up, oscillating backwards and forwards. In the language of modern science, it is the beginning of static during one period, and during another period, it is becoming dynamic. At one time, it becomes potential, and the next period, it becomes active. हाँ, ये हमारा पूरा पैराग्राफ मेरे तो है 4 लाइन की, ये समझ पड़े जा रही है। नहीं, ऐसा है कि ये तो सृष्टि हो रही है, तो ये सृष्टि धीरे धीरे यहाँ अभी सब हम देख रहे हैं, सब हो रहा है। हाँ। इसके बाद धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और ये सब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। ये आकाश भी जो है, देह, ये पृथ्वी जो है
वो आकाश में वायु में, जल में विलीन होगी, और जल जो है वो अग्नि में विलीन होगा, अग्नि जो है प्राण में विलीन होगा, ये सब विलीन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर सृष्टि शुरू होगी। ये कॉस्मोलॉजी, ये सृष्टि का विधान है। अच्छा, ये साइकिल चलती रहेगी। जैसे हमारा शरीर की बात, हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु होगी, उसी प्रकार इस सारे, ये पृथ्वी जो है इसके जन्म हुआ है, उसकी पृथ्वी की मृत्यु होगी, उसके अनुसार सारा ये ब्रह्मांड है उसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होगी, ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो महाराज जैसे एक आर्टिकल कहीं ये पढ़े हैं इसके अंदर कि एक दिन वैसा आएगा सबको मुक्ति मिल जाएगी, तो दैट डे व्हाट विल हैपन? फिर ये तो साइकिल रोटेशन खत्म ही हो जाएगा ना। ये किसने बोला? जिससे बोला है उसको पूछो, मेरे को नहीं मालूम। महाराज अब ये तो अपने नहीं आर्टिकल, महाराज, ये आर्टिकल में मेंशन है। क्या है? आर्टिकल में मेंशन है कि कभी न कभी एक दिन ऐसा आएगा जब सब मुक्त हो जाएंगे, हम सब उसी की तरफ ही जा रहे हैं, लेटर और तो ठीक सूनर। है, हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं आज मुक्त होऊंगा, दिलीप भाई कल मुक्त होंगे, वो एक ही दिन होने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, वो साइकिल चलता रहेगा। हाँ, उसके बाद में जो कुत्ता हमारे यहाँ पे खेल रहा है वो मनुष्य बनेगा, उसके बाद मुक्त होगा, सब लोग मुक्त होंगे, लेकिन एक साथ मुक्त होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। हाँ, दिलीप भाई ने पॉइंट रेज किया है ना। हाँ, उनका पॉइंट यही है कि एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, पर ये है सर्कल चलता रहेगा। नहीं भाई, लेकिन दिलीप भाई का कितना विशाल माइंड है, देखो ये वो सोच रहे हैं कि ऐसे में क्या करना पड़ेगा, क्या सिचुएशन होगी। थैंक यू शिवानी जी, आपने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन महाराज जी ये प्रश्न हमारे मन में भी आता है जो दिलीप भाई ने पूछा है। चलो, यस महाराज जी, नेक्स्ट, हाउ थॉट कम्स इन माइंड? ये थॉट्स आते कैसे माइंड में? महाराज जी ये एक सवाल आके खड़ा हुआ है कि माइंड इज सुपीरियर और थॉट्स आर सुपीरियर, हाउ थॉट्स आर कमिंग इन द माइंड? वो तो माइंड का स्वभाव है, माइंड का स्वभाव है। तब पेट है, भूख क्यों लग रही है? भूख का स्वभाव, पेट का स्वभाव है कि भूख लगेगी। दिस इज द नेचर। हाँ, स्वभाव है इसका। Okay. Body, mind and soul are different or they are one? ये तो बोल दिया, क्लियरली बोल रहे हैं ना, बॉडी और सोल, माइंड और सोल भिन्न है, क्लियरली बोल दिया है। बॉडी माइंड सोल क्लियरली बनाया है, तीन चीजें बार बार बोल रहे हैं, उसको क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल क्लियरली बोला है। No, but ultimately it makes us to one. अरे अल्टीमेटली सब तीनों डिफरेंट है। अल्टीमेटली तो सुनो, अल्टीमेटली तो माइंड भी नहीं रहेगा, बॉडी भी नहीं रहेगी, केवल एक सोल सर्वत्र रहेगा, ये भी बता दिया है। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट, all those religious views which generally pass under the name of dualism hold that this soul is qualified, that it is of various qualities, that all feelings of enjoyment, pleasure and pain really belong to the soul. This is quoted under the article. But what we have learned is it in body and not soul. Am I correct? This all pleasures. बॉडी, सुनो, हम क्या है कि हम बॉडी को अपने साथ कहाँ बड़े पढ़ाया गया है, किताब में पढ़ाया है बॉडी और सोल भिन्न है, लेकिन हम मिल जाते हैं कंटिन्यूअसली। मेरा दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, अरे बॉडी को भूख लगी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे भूख लग रही है, ये सोल के साथ मैंने बॉडी को कंटिन्यूअसली मिला के रखा है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है बाबा। बिल्कुल सीधी बात, बार बार कही जा रही है ये। महाराज, इसके पहले के सवाल पे आपने कहा था कि वास्तव में तीनों अलग है, बॉडी माइंड एंड सोल आर डिफरेंट, दे आर नॉट वन। गलती से मिलाया। वास्तव में अलग हैं। अज्ञान के कारण, माया के कारण ये मिक्स हो गया है, इसीलिए तो सारी समस्या। जिस दिन आपने जान लिया कि बॉडी माइंड और सोल भिन्न है, उस दिन आप मुक्त हो गए। ये जूम मीटिंग में नहीं बैठ सकोगे। Okay, so
महाराज जी एक मिनट में फिर ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ. All those religious views which generally pass under the name of dualism hold that this soul is qualified, that it is of various qualities, that all feelings and enjoyment, pleasure and pain really belong to the soul. हाँ ठीक है, ये द्वैतवाद है. Okay. ये द्वैतवाद है. हाँ. Oh, okay. This is under the Dvaitvad, right, sir? Now my next question is how the soul is formed, which cannot be decomposed and die. How the soul is formed? सोल फॉर्म नहीं होता, वो तो हमेशा रहता है. ये देह बनती है, प्राण बनता है, मन बनता है, लेकिन सोल जो है वो सदा सर्वदा बना रहता है. वो देह मन प्राण के साथ में लिप्त हो जाता है. इसलिए हमको कहता है, लगते हैं कि हम मेरा जन्म हुआ, सोल का जन्म हुआ. सोल का जन्म नहीं होता, सोल की मृत्यु भी नहीं होती. वो न बनता है न बिगड़ता है, वो सदा सर्वदा बना रहता है. शरीर बनता है, बढ़ता है. जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद के अनुसार वो बार बार चक्कर में पड़ता है, क्योंकि वो देह को और मन को और सोल को एक कर लेते हैं. जी. Yes, Maharaj. मेरा next question है, at the end of the cycle, page 273, 9th line from the bottom, does it mean there are two Atma, one lives in the universe and the other in the sphere of Brahma? क्या Maharaj, क्या दो आत्मा? हाँ, पेज नंबर 273 ये बताता है. एक मिनट देखता हूँ, पेज नंबर देखता हूँ. हाँ, पेज नंबर 273 और हाँ बोलो क्या है. हाँ, आखिरी से 9वीं लाइन है, 9th from the bottom. हाँ, at the end of the cycle, हाँ, the next class of persons who have been doing good work with selfish motives are carried by the results of their good works when they die to what is called lunar sphere, where there are various heavens and they have acquired fine bodies, the bodies of gods. They become gods and live there and enjoy the blessings of heaven for a longer period. So my question is, there are Atma is always one. Why it speaks like that? At the end of the cycle. बार बार भी मैं कह रहा हूँ ना, ये आत्मा और देह मन को जोड़ दिया, युक्त कर दिया ज्ञान के कारण, इसीलिए ये चक्कर होता है. ये ब्रह्मलोक में गए, स्वर्ग में गए, नरक में गए, वहां पे फिर कर्म जब कट गए, उसके बाद पुनर्जन्म हुआ. ये सब इसलिए होता है कि ये सोल जो है वो अपने को आत्म देह के साथ, देह और मन के साथ में अज्ञान के कारण युक्त कर लेता है. ये बार बार मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को, इसी कारण सारी समस्या होती है. जी. My next question, Devi and Devatas who live in heaven are assistant to Brahma and their karmas are not 100% pure, and they also have to become back when their good karmas end. They have to follow the complete cycle. Now my question is, in continuation of question number 8 में ये मेरा ये सवाल है हमारा, कि जो देवी देवता है वो ब्रह्मा में लीन नहीं है, they are in स्वर्ग, so they have also to come back again in recycle. हाँ ये तो है, बार तो यही कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं. तो यही चीज तो बार तुम बोल रहे हो, यही क्वेश्चन कर रहे हो, एक ही प्रश्न कर. तो महाराज ये देवी देवता भी हम सरी के ही है, सिर्फ सुपीरियर है. हाँ. ओके. तो वहां पे उनमें ईर्ष्या द्वेष ज्यादा होती है. कोई अप्सरा मिल गई तो उसके भी चक्कर में पड़ जाते हैं, ये सब होता है. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट सवाल. नहीं, हम महाराज ये चक्कर से ऊपर उठना चाहते हैं. स्वामी जी चलो तुम अपना चक्कर चलाओ तुम्हारा चक्कर चलाओ. अब तो आखिरी का प्रश्न है ना, बोलो. Swami ji says the last class, which is wicked, they become ghosts and demons. So there is an existence of ghosts and demons. क्या भूत प्रेत हाँ है क्या दुनिया में? हमें है.
और तुम जानते अनुभव करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बस चलो तो फिर छोड़ दो। नहीं अच्छा महाराज जी ये कहते हैं जैसे कहा है इसके अंदर कि भूत प्रेत है जो आत्मा पूर्ण जिंदगी के पहले मर जाती है तो भूत प्रेत में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात हमको समझाई गई है, हमने जो समझी है। अब मेरा सवाल ये है कि आज की तारीख में ये जितने ये मर्डर और ये जो आतंकवादी के द्वारा जो बिना डेथ होती है तो क्या ये सब आत्मा इस कॉस्मोस में घूम रही है क्या? और तब तो ये पूरा कॉस्मोस ये भूत बंगला ही होना चाहिए। अब भरे हुए हैं, बहुत भरे हुए हैं। हाँ ये हम लोग जरा भगवान की कृपा से जरा अच्छा तुम्हारा हमारा पुण्य अच्छा है, नहीं तो हमको सब भूत प्रेत ही दिखेंगे। हाँ अच्छा हुआ है संसार भूत प्रेतों से। महाराज यहाँ पे उन्होंने स्वामी जी ने अरे बहुत सारे हैं, स्वामी जी ने भी दर्शन किए थे। क्या स्वामी जी कहाँ पे गए थे? ठाकुर कहाँ पे गए थे? वहाँ के जब ठाकुर जो गए थे ना वहाँ पे भी उन्होंने एक जगह रहे थे तो वहाँ पे आए, कहा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ रह रहे हैं, आपके कारण, आपकी पवित्रता के कारण हमको बहुत कष्ट हो रहा है। महाराज गोपाल की माँ के घर। हाँ तो फिर तो भूत प्रेत तो है बाबा। ओके ओके महाराज जी दिलीप भाई नहीं इतना इंटरेस्ट इसमें मत करो। नहीं महाराज जी आखिरी सवाल मेरा, Buddhist story of body and mind. Since body and mind is changing every moment, this theory is acceptable by common men, but this theory is rejected by Swamiji. It means one part of the world who have accepted Buddhism will not have a place in Brahma. And for them, this universe is Brahma. अरे वो ब्रह्म की बात ही नहीं बुद्धिस्ट में आती है ना, प्रश्न कहाँ उठा रहे हो तुम, अपने मन से लगा रहे हो। हाँ तो ये तुम्हारा हिंदू थ्योरी बुद्धि पर खोज रहे हो। बुद्धि कहते हैं कौन ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा, ये क्या सब बकवास कर रहे हो तुम, वो तो मानते ही नहीं है। तुम उनको बुद्धों को ब्रह्मलोक में या ब्रह्म के साथ एक करना क्यों चाहते हो? वो तो नहीं चाहते, वो तो जानते ही नहीं, मानते ही नहीं है, होकर तुम लोग खींच रहे हो उसको। जी 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 तो ये अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म महाराज जी आउट ऑफ दिस आर्टिकल यदि ये बाद में कहाँ जाती है इनकी सोल? ये वो अपने कर्म के अनुसार उसका जन्म मरण होता है। अच्छा ओके जी महाराज जी बस महाराज जी ये मेरे सवाल से प्रणाम। अच्छा भाई थैंक यू वेरी वेरी मच, बड़े गंभीर आपने प्रश्न किए हैं कि बस क्या बताऊं। अच्छा सतीश भाई, सतीश विग आ जाओ। प्रणाम महाराज। हाँ भाई प्रणाम महाराज। हाँ भाई आ जाओ, हम बोलो। जी जी महाराज, जी महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 271 Swami says the process of sense perception is not complete without there being something permanent behind mind and intellect, where all the impressions are gathered. My question is, Maharaj, are all the impressions gathered and unified in the soul, or it is in the chitta, which is the store of house of all impressions? Impressions जो sense perception होती है, what you said? जी महाराज। ऐसा है कि जैसे एक पर्दा है, एक पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप थोड़ा वो फेंकोगे, अपने सिनेमा बताओगे तो it is seen on the screen. जी जी महाराज। There is no screen, you will not see the cinema. That's why there must be a basis for the integration, unification of all these. But the screen is not affected by that, isn't it? जी जी महाराज, screen is not affected by that. Then महाराज, do we यदि हो जाएगा तो soul will become a mass of. Otherwise there is screen, no, there must be a screen. Yes. Buddhism does not, Buddha does not accept it.
they don't accept it. We don't need a soul. जी ये continuously change हो रहा है, और because of that continuous change we see a continuation, that's all. Otherwise there is only constant change, that is शून्य है बस. जी महाराज. So they don't accept it, जी. but Vedanta accepts it. लेकिन ये सेंस परसेप्शन तो माइंड में हो रहा है ना, ये तो आत्मा में नहीं हो रहा है. नहीं आत्मा में नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा रूप जो स्क्रीन है ना, वो तो होना चाहिए ना. वो होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम उस स्क्रीन के साथ में माइंड को एक कर लेते हैं. जी महाराज. दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज. जी महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 275. All men who do certain good and great acts, but their general tenor of lives is not correct, becomes gods. महाराज ये जनरल टेनर क्या मतलब, ये समझाया उनकी जनरल जनरल टेनर ये क्या है? यानी जनरल टेनर यानी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ है मेरा नाम होवे, मुझे सुख मिले. ये जनरल टेनर, जनरल जो उनका भाव है ना, वो थोड़ा सा स्वार्थी भाव है. इट इज नॉट. जैसे एक सन्यासी भी सेवा कर रहा है और एक दूसरा आदमी भी सेवा कर रहा है. दूसरा आदमी सेवा कर रहा है कि या तो इससे मेरे को थोड़ा सा नाम यश मिल जावे, या फिर मेरे को थोड़ा पैसा मिल जावे, मेरे को जॉब अच्छा मिल जावे, कोई मेरे को प्रमोशन कर देवे. He is doing the same thing. Yes. But the general tenor is भिन्न. ठीक. इसके लिए उनके सकाम कर्म के कारण को स्वर्ग मिलता है, नेम फेम इत्यादि मिल जाता है. मिल जाता. ठीक है महाराज. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, डज दिस कंसेप्शन, ये जो पाथ बताए उन्होंने स्वामी जी ने, ये गीता में भी लिखे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी है ये बात, देवाना मार्ग एंड पितृयाना मार्ग. जी इस बात का कोई साइंटिफिक बेसिस है जहाँ वैसे कल्पना है हमारी? क्या है बोला है? ये जो मार्ग बताए हैं, 2 मार्ग बताए हैं जिसमें हाँ. देवयाना मार्ग एंड पितृयाना मार्ग, ये गीता में भी है, पर क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है या कल्पना मात्र है? ये कल्पना है हमारी, ये लॉजिक है. अब देखो ऐसा है, विचार करने पे लगता है, यानी विचार की बात है, रैशनल लेना है कि विचार करने के भाई मैंने अच्छा काम किया है तो उसका फल तो अच्छा होना चाहिए ना. अच्छा होना चाहिए. तो क्या होगा, अगले जन्म में मैं अच्छा फल पाऊंगा, या तो स्वर्ग में जाऊंगा, उसके बाद में फिर वापस आ जाऊंगा, जो भी होगा. और जो पितृयान है तो उसमें मैं और कम लोगों में जाऊंगा, वहां से फिर मुझे कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा, मैं पशु बन जाऊंगा. इस प्रकार का जो यानी एक रैशनल विचार करके कहा है कि तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा. फिर प्रश्न उठता है कि अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर कहते हैं इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म हुआ पितृयान होगा या देवयान. लेकिन ये सूर्य मार्ग से या चंद्रमा के मार्ग से ये बातें, तो इसमें इसका तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. सूर्य मार्ग से जाते हैं, सूर्य के मार्ग से बताते हैं. एक शुभ मार्ग है, अच्छे मार्ग से जाओगे, बुरे मार्ग से जाओगे. अच्छे मार्ग से जाओगे तो अच्छा उसको तुम्हारे को आनंद होगा, बुरे मार्ग से जाओगे तो दुख मिलेगा. तो ये एक बता दिया है. अब वो है कि नहीं है, एक्चुअली है कि नहीं है, ये बात दूसरी है, लेकिन भाव ये है कि अगर शुभ करोगे तो शुभ का परिणाम अशुभ होगा, और वो शुभ परिणाम भी शुभ मार्ग से होगा. जी क्या दिक्कत? ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हमारा 286. फ्री विल इज ए मिसनोमर. Free will is a misnomer. There can't be any will. स्वामी जी कहते हैं कि विल नाम की कोई चीज नहीं है, फ्री विल कोई नहीं होती, क्योंकि वी आर caught in the snare of माया और कर्मा. तो हमारे विल पावर की जब हम बात करते हैं तो हाउ कैन वी एक्सरसाइज विल पावर वेयर, जबकि हमारी कोई फ्री विल है ही नहीं. पेज नंबर बताओ तो. पेज नंबर 286.
286 महाराज, free will is a misnomer. एक मिनट Free will is a misnomer. एक मिनट आ जाओ क्या खाना खाने? हाँ पेज नंबर कौन सा है? 8286। यस। अच्छा एक मिनट, कौन सी लाइन आ रही? हाँ जी, जहाँ पर लिखा free will is a misnomer. एक मिनट 286। Yes. ओके सॉरी मैं 76 देख रहा था। 86। पढ़ू मैं? नहीं मैं देख रहा हूँ उससे ठीक रहेगा मुझे। He is the whole universe. Either say he is the whole. Say that to him. मिडिल में है। One party holds that the idea of freedom is delusion. अच्छा ठीक है, हाँ, free will is a misnomer. Okay, will can never be free. How can it be? It is only when the real man has become bound that his will comes into existence, and not before. The will of man is bound, but that which is foundation of that will is eternally free. So even in the state of bondage, which we call human life or God life on earth or in heaven, there is yet remains to us that recollection of freedom, which is ours by divine right. So स्वामी जी कहते हैं कि हम लोग बेसिकली तो फ्री हैं. So when we free are, the question of will does not arise. Why should I will have will? I am free. I have no desire. Why should I have will? But when I come down to the level of man, that freedom, feeling of freedom, which is by basic nature, it comes down. When a man has attained his self, and wait a minute. So even in the state of bondage, which we call human life or God life or on earth or in heaven, there yet remains to us the recollection of the freedom, which is ours by divine right. And consciously or unconsciously, we are struggling towards it. When a man has attained his own freedom, how can he be bound by any law? No law of the world, universe can bound him. And for the universe itself is him. Yes. So that means उन्होंने क्या है कि free will जैसी चीज को उड़ा ही दिया है. The idea of freedom is our own nature. That's all. और इसके बाद और भी कहीं है ना कहीं पे? That is all. महाराज जी, यहाँ पर what is meant by foundation of that will? वही आत्मा, freedom of आत्मा. Yes, thank you. जैसे है ना, एक मिनट उसके ऊपर भी है. हाँ. It is also true that freedom is of the nature of the soul. It is birthright. That real freedom of the soul shines through veils of matter in the form of the apparent freedom of man. Every moment of your life, you feel that you are free. You cannot live, talk, or breathe for a moment without feeling that we are free. But at the same time, a little thought shows that we are like machines, etc. So they said that freedom is a delusion. Okay. अच्छा चलिए, हो गया सब? महाराज जी एक प्रश्न पूछना था मुझे. महाराज जी मेरा. हाँ, देवाशीष साहा. हाँ महाराज जी प्रणाम. महाराज जी काफी क्वेश्चन. You have so many such a long big questions. बाप रे, हम तो डर गए हैं. नहीं सर. तो जरा सिंपल करके पूछना, नहीं तो मैं नहीं घबरा जाऊंगा. नहीं महाराज जी एक्चुअली क्या हुआ ना, पैसेज से पिकअप करने में देर हो जाता है, इसीलिए मैं इसको टाइप करके माने इसको करके फिर आप भेजते हैं जाते जल्दी. नहीं लेकिन ठीक है महाराज जी, थोड़ा सा करके करते हैं ना. हाँ ठीक है, अभी इसको शॉर्ट करते हैं महाराज जी. 1 2 3 4. अच्छा चलो 5 क्वेश्चन तो हो गए महाराज जी. एक बेसिक
पेज क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं, पेज 285. We are all traveling in this mirage of the world, day after day, month after month, year after year, not knowing that it is a mirage. One day it will break up, but it will come back again. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, since we are traveling in the mirage of the world day after day, our karma should also be a mirage and not real. When everything is false, then our karma is also false, mirage. Why men are bound by karma? Yes. No, those who recognize this become free this very moment. If you're feeling like that, this karma is mirage. If you feel it, this very moment you will be free. Thank you very much. Thank you, Maharaj. No question. It's absolutely true. Thank you, Maharaj. This world is mithya, is mirage. The moment you know it, that very moment you are free. हाँ, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, ये तो क्लियर हो गया. लेकिन और एक सेकंड इसका पार्ट रह गया. एक जगह स्वामी जी बोल रहे हैं, बॉडी माइंड इज वन व्हील and the soul is another wheel. Both the wheels are connected with a pole, that is called karma. The pole is karma, and with the axe you cut the wheel, that is body and mind get separated, and still it rotates because of the karma. If karma is false, it should stop. That means when I am disconnecting soul from the body. Maharaj ji, can you? Because of the wheel, there is a wheel, there got a momentum of the wheel, isn't it? Yes. So one wheel cut. So that wheel, some momentum is there for some time, that will be there. Otherwise it is gone. That is unreal momentum. Huh? So that is a false momentum. Break nahi hai. It is not a break. It is the breaking, cutting of the wheel, the rod. किसी ने हमने ब्रेक नहीं लगाया, वहां पे ब्रेक नहीं है. एक रॉड काट दिया है. तो उसका जो डिस्कनेक्टेड हो गया ना, जो कर्म, हाँ, तो उससे आत्मा से कनेक्ट. कर्म का व्हील से शरीर चलता रहेगा थोड़े दिन तक, उसके बाद खत्म हो जाएगा. व्हील में पावर जब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी मच. बाकी सब क्वेश्चंस तो हो ही गया महाराज जी. अच्छा, ठीक है, थैंक यू महाराज जी. महाराज मेरा एक छोटा प्रश्न था. नहीं तो तुम्हारे तो 4 प्रश्न पहले वाले भी हैं. नहीं, वो नहीं पूछने का, बाद में पूछेंगे. महाराज यहाँ पे जो स्वामी जी कहते हैं, in fact not a million, not 1 in a million can think of anything other than phenomena. इसका अर्थ क्या हुआ? ये 267 जगत जो है ना, हाँ, दृश्य जगत के परे, यानी ये फिनोमिना यानी दृश्य जगत की परिवर्तन इत्यादि है. एक कोई भी व्यक्ति इसका भार नहीं सोच पाता, हमेशा उसी में है. या तो मानसिक जगत का मेंटल फिनोमिना होगा या फिजिकल फिनोमिना होगा, हम केवल उसी में लगे रहते हैं बस. क्या? अच्छा, जगत में लगे रहते हैं. either we are busy with mental phenomena or physical phenomena. घटनाएं जो कुछ हो रही हैं उसी में हम हमेशा लगे रहते हैं. सुनो, ये तो बहुत मुश्किल है, बाहर निकलना तो बहुत प्रॉब्लम. पाला, हाँ जी. और एक अच्छा, अब कौन बचा है भाई? एक मिस कर गया था. प्रश्न कौन बचा, किसका बचा है प्रश्न? मेरा बचा वो एक मिस कर गया था. पेज नंबर 287. until the bad momentum is. Hello, can I speak? Can I? Question number 8 था. अब तो अंदर देखो. I have not. Again ask the question. Page. Hello. Until the bad momentum is entirely walked out. बच्चों के बैगों में से नहीं, और कहीं से आवाज आ रहा है, और कहीं से आवाज आ रहा है. संजय जी म्यूट कीजिए. बाबा, I have not heard. There are so many discussions going on there. हाँ, now disturbance is not there. Until page 287, question number 8 था. Until the bad momentum is entirely walked out and past impurities are entirely burnt, it is impossible for any man to see and realize the truth. Maharaji, we have passed through 80 lakhs of bodies and accumulated many impurities. Is it possible to reach to the
self, reach to the self or Atman in this very life and become free? अरे भाई देखो, this is a purely theoretical question. We don't want to realize, we don't want to become free. We are very happy with our Zoom meeting. We get lot of interest. We have nice drink afterwards. We have coffee, tea before that. We are very happy with the world. No one मम्मी का रूम wants to साफ करा देना be उससे अच्छे से। Don't talk of these things. वही बोल रहा हूँ। सब फालतू की बातें हैं। 2 फिनाइल से करा लो ना। No one wants. कौन आया भैया, देखो क्या? If you want it, you will get it. No one wants. Who weeps? Thakur says, "Oh, child is playing with toys. When he weeps for mother, who weeps? No one weeps. These are purely theoretical questions. We don't want it." महाराज जी, अगर थोड़ा सा that आनंद मिल जाता है किसी को, थोड़ा सा आनंद मिल जाता है, 1 millionth of that, so immediately he will find this outside world pleasure is nothing. So only he will start rushing towards that whole आनंद का तरफ. So we that idea does not come to our mind that if one particle has so much of joy, Yes, how yes. much will be there if the whole of it is there? That idea Yes. does not come to us. ओहो. एक कप पीने से ही तो बड़ा मजा आ गया ना, एक घूंट पीने से ही शराब हो गया, नशा आ गया, बाकी बोतल की क्या जरूरत है? आप खुद ही तो बोल रहे हो कि हमको तो इतने से ही मजा आ जाता है। आज एक जूम मीटिंग हुई तो 7 दिन तक मजा बना रहता है, तो क्यों भगवान की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है भगवान की, कोई मुक्ति की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू महाराज, थैंक यू, समझ में आ गया मुझे, थैंक यू। अच्छा भाई, और कौन? महाराज जी, एक प्रश्न पूछना था आपसे। आशीष अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। महाराज जी, ये आर्टिकल में इंग्लिश में पेज नंबर 275 पे स्वामी जी कहते हैं, द स्टेट्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ड्यू टू गुड एंड बैड कर्मास आर डिवाइड ऑफ द फोर्स जनरेटिंग फ्रेश कर्मास, दे हैव ओनली टू बी एंजॉयड और सफर्ड। इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे। फोर्स डिवाइड ऑफ फोर्स जनरेटिंग दिस फ्रेश कर्मास। एक मिनट, कौन सा पेज नंबर? 275, पहला ऊपर ही फर्स्ट पेज नंबर, पेज नंबर 275। karma, that is what ghost karma, then past fresh karma. When that period is finished, they too become men. The states of reward and punishment due to good and bad karmas are devoid of the force of generating flesh karmas. They have only to be enjoyed and suffered. जो अच्छा और बुरा कर्म आपने किया है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है कर्म का जो दंड मिल रहा है ना, उसमें नया कर्म प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, ये मतलब। महाराज जी, एक मिनट, मुझे बीच में एक मिनट फिर मैं सुन नहीं पाया महाराज जी। ऐसा है कि कर्म में 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि कर्म मैं कर रहा हूं अच्छा या बुरा, इसके कारण मुझे फल मिलेगा, लेकिन जो मुझे फल मिल रहा है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट ड्यू टू गुड एंड बैड कर्मा, उसमें अलग से कर्म नहीं, फल नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं किसी बुरे कर्म के कारण बीमार हो गया, तो ये बीमारी मेरे दूसरे कर्म का नहीं पैदा करेगी। ये तो मैं सफर कर रहा हूँ, ये तो फल ही है। ये फल फिर कर्म पैदा नहीं करेगा, ये मतलब है, सीधी बात, और कुछ नहीं। ठीक है महाराज। अच्छा, और किसी का प्रश्न? और महाराज जी कि हमारे धर्म में एक बात कही जाती है कि मानव जन्म पाने से पहले मनुष्य को 84 लाख योनियों में उसको से गुजरना पड़ता है, तब ये मानव जन्म प्राप्त होता है। हाँ। तो ये 84 लाख योनि का कंसेप्ट क्या है महाराज जी? यानी ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि 84 लाख बर्थ लेने के बाद ही मनुष्य जन्म होता है, तो फिर उसमें क्या देव योनि भी आ गई, भूत योनि भी आ गई, सारी योनि आ गई उसके अंदर?
तो उसको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं जो मानव जन्म का, ये बताने के लिए कि भाई इतनी योनियों में केवल कर्म कर रहे और उसका फल प्राप्त कर रहे, अब ऐसा जन्म आया है कि इसमें तुम शुभ कर्म करके मुक्त हो सकते हो। मुक्ति का एकमात्र कर्म संभावना है इसी कर्म, इस योनि। इसलिए उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए कहते हैं, अरे भाई 84 लाख योनि के बाद में मिला है, बहुत मूल्यवान है, इसका पूरा फल उठाओ, नहीं तो फिर चक्कर में पड़ोगे। ये बात, ये बताने के लिए इस चीज को। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तव में, और वास्तव में भाई 84 लाख है कि 85 लाख है या 84.5 लाख है, या 64 लाख है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करने से क्या होने वाला। हाँ ठीक है, मतलब ये है कि बहुत जन्मों के बाद में दुर्लभ है। मानव जन्म प्राप्त होता है। अब ये लाख करोड़ की क्यों चिंता करते हो? नहीं, मुझे ये यही समझना था बस। ठीक है महाराज जी, ठीक है। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। हाँ महाराज, अभी जो वो कर्म के लेके आप बोल रहे थे, उसमें एक हाँ। क्वेश्चन है कि कर्म का तो दो फल होता है, एक तो कर्म फल और एक संस्कार। हाँ। तो हम जब कर्म फल जो समर्पण करते हैं, तो वो उसमें जो मतलब हम क्या समर्पण करते हैं कर्म फल उसमें? नहीं देखो कंफ्यूजन मत करो। हमने कुछ बहुत सारे कर्म किए, अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। जी जी। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कर्म होता है, दूसरा संस्कार होता है। जी। अगला जन्म जो होगा हमारा, या हमको जो का भोग होगा, सुख होगा, सुख मिलेगा, वो हमारे कर्म संस्कारों के कारण होगा। जो संस्कार, अच्छा हाँ, संस्कार के कारण होगा। हाँ। जो बाहर कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार पड़ेंगे, उसके कारण हमको सफल होगा। अगर हमने बहुत शुभ कर्म किया, अत्यंत शुभ किया, अपने प्राण की बाजी लगा के किसी की हमने रक्षा की जी, तो उसका फल इतना प्रबल होगा कि संस्कार के पहले ही इसी जन्म में हमें शुभ कर्म मिल जाए। अच्छा। और अगर कोई बहुत ही बुरा कर्म किया, हत्या की या जो कुछ किया, बहुत क्रूर कर्म किया, तो इसी जन्म, हमारा तो अगले जन्म में भी अच्छा होने वाला, इसी जन्म में आपको बुरा कर्म मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगले जन्म में तुमको अच्छी योनि मिलने वाली थी, वो बातिल होकर बुरी योनि मिल जाएगी। हाँ। के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, जब हम कर्मफल समर्पण करते हैं इष्ट को, तो उसमें कौन सा फल हम समर्पण करते हैं, संस्कार या जो भी मतलब ये जो दो पार्ट है? देखो, हाँ। अगर सच्चा वास्तविक समर्पण यदि होवे ना, तो बाहर का कर्म और अंदर का कर्म सब भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा। पर ये इतना आसान नहीं है। हम क्या करेंगे, तो अपने अशुभ कर्म भगवान को समर्पित कर देंगे, शुभ कर्म नहीं करेंगे। तो ये कर्म पर समर्पण करना जो है ना, ये सब बाबा हमको ठीक से लगता नहीं है। अच्छा। शुभ कर्म करेंगे नहीं और बुरे कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसी भी कहानियां हैं, ऐसे संत हो गए हैं कि अपने शुभ कर्म भगवान को समर्पित करते थे और अशुभ कर्म नहीं करते थे। तो भगवान ऐसे शुभ भक्तों के अशुभ कर्म भी जबरदस्ती से ले लेते थे। बहुत अच्छी अद्भुत कहानियां हैं, लेकिन वो नहीं करते। और श्लोक भी बड़े अच्छे हैं, मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है मैं नाहम क्या है, मैं पुनर्जन्म नहीं चाहता, क्या है वो, मैं मुक्त नहीं होने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के जो दुख हैं उसको मैं खुद स्वीकार करूं,
अच्छा। न हम कामये राज्यम न सुखम न अपुनर्परम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। मैं राज्य नहीं चाहता, मैं अपुनर्जन्म के मेरा पुनर्जन्म न हो ये भी नहीं चाहता, मैं सुख भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि दुख आरती और आरती नाशनम, प्राणी लोग जो दुख कर रहे हैं उनके आरती को नाश करूं। दूसरा श्लोक है, को न उपायो स्यात् येनाहं सर्वदेहिनां अंतः प्रविश्य सततम भयेहम दुख भाव। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मैं प्राणियों के शरीर में घुसकर उनके जो दुख और पाप को स्वीकार। ये इतने महान हृदय वाले महापुरुष हैं कि बस वो कर्म का चक्कर में मुक्ति उक्ति की बात ही नहीं कहते। ठीक महाराज। महाराज जी एक बेसिक ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज जी एक बेसिक क्वेश्चन था। महाराज जी एक बेसिक क्वेश्चन था। हम जब काम चालू करते हैं सुबह, उस समय में भगवान को याद करके करते हैं कि आज का जितना काम करें उसका फल आपको समर्पण करूंगा। तो बीच बीच में तो याद करते हैं, एकदम जब काम खत्म हो जाता है तभी समर्पण करके ही आता है। तब शुभ और अशुभ का चिंता तो मेरा नहीं आता है, सारे के सारे समर्पण कर देते हैं। तो ये क्या सच है? और मुझे पता नहीं चलता कि ये क्या इसमें क्या माने कितना दूर तक सच है, क्या असच है, क्या अशुभ है, क्या शुभ है, ये सब चिंता तो आता ही नहीं है। वो सब भगवान को छोड़ दो, कहाँ देखते हो ये सब। हाँ, तो आप ये जो आप बताए ना अभी कि शुभ का ये वो लेते हैं, तो ये सब चिंता तो आता ही नहीं है। जब काम चालू करते हैं तो उनको याद करके चालू करते हैं, बीच बीच में याद करते हैं। जब कंप्यूटर बंद करते हैं शाम को आने का समय में तो सब समर्पण करके आते हैं। तो इसमें पता ही नहीं चलता है कि वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं चलता है। अदर्स मैंने देखो 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 देखो, इनमें समर्पण ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान का स्मरण ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने समय आपने भगवान का स्मरण किया है उतना ही ठीक है। समर्पण वपण छोड़ दो, वो तो एक बता दिया है कि समर्पण करो, क्योंकि हम कर्म करते हैं। सदा सर्वदा भगवान का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। समर्पण हो न समर्पण हो वो सब छोड़ो बात। तो बता दिया कि तो स्मरण करो, तो इसलिए तुम समर्पण करो क्योंकि कर्म कर रहे हो। लेकिन बीच बीच में भगवान को याद करो। ब्रह्मानंद जी ने कहा है, बिफोर यू बिगिन द वर्क रिमेम्बर गॉड, डू इट इन द एंड, ऑल्सो इन बिटवीन। तब उसमें शुरू में प्रार्थना कर सकते हो, अंत में प्रार्थना कर सकते हो, बीच में प्रार्थना कर सकते हो, जो भी हो। किसी भी प्रकार से प्रश्न ये है कि भगवान में मन किसी न किसी प्रकार से लगाना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, ये तो हो ये तो भाई ये सब सिर्फ बाकी बकवास करने से नहीं होगा, एक अपनी प्रोसेस ले लो और करो। हाँ, ये प्रोसेस तो ये क्वेश्चन के नेक्स्ट मोमेंट में ये सब समाप्त हो जाते हैं। हो गया? और कोई बचा कि नहीं? नहीं, ठीक है महाराज। थैंक यू महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। और कौन था? महाराज महाराज जी छोटा सा शांति। महाराज हेलो महाराज जी। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। मैं स्नेहा बोल रही हूँ महाराज जी, मैं स्नेहा बोल रही हूँ महाराज जी। हाँ, ईतू घोष का एक क्वेश्चन था। ईतू घोष, बोलो बोलो। वो कर नहीं पा रही है तो मुझे बोली है करने के लिए, तो मैं उसका क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ महाराज जी। पूछो पूछो। हाँ महाराज जी, मैं वही निकाल रही हूँ अभी। महाराज जी तब तक मैं प्रश्न पूछ लूं? हाँ बोलो। महाराज जी मैं सच में मतलब अब मैं क्या बोलूं कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हर समय ठाकुर का स्मरण रहे, मैं उन्हें याद करती रहूं। मैं बीच बीच में प्रार्थना भी करती हूँ कि ठाकुर तू मुझे भूले ना, तू मुझे कभी ना भूलना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये मतलब क्या कमी है जिसके कारण ये ऐसा नहीं होता, भूल जाते हैं हम। अरे इतना कमी इतना नहीं होता ना, तो हमारी जो जूम मीटिंग का मेंबरशिप कम हो जाती, आप संत हो जाते। अरे भाई इतना आसान है क्या? संघर्ष, स्वामी यतीश्वरानंद जी बोलते थे, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, संघर्ष करो संघर्ष करो संघर्ष करो, रिपीटेडली। ब्रह्मानंद जी बार बार बोलते थे, ऐसे बड़े बड़े संतों को ब्रह्मानंद जी बोलते थे संघर्ष करो।
बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं, दिन रात लगे रहना पड़ेगा। क्या है, हमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे ये 6 महीने साल भर से हम जूम मीट कर रहे हैं, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। इस प्रकार का भाव मन में आना चाहिए, व्याकुलता आनी चाहिए। लगे रहो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। महाराज जी मैं पूछूं? हाँ बोलो। महाराज जी, हाँ महाराज जी, हाँ स्नेहा बोल रही हूँ। क्वेश्चन ईटू घोष का है। ईटू घोष पूछना चाहती है, एज वी हैव कम टू रियलाइज दैट जीवा get its appropriate birth according to its effect of karma, but as we know Atma is not taking part in any action, then what force makes the birth to take place? No, if you have fully realized, that Atma has nothing to do with birth, etc., then this very moment you are free. Okay, Maharaj. You don't realize, okay, Maharaj. We are just theoretically talking. Pure theoretical talking. Constantly our Atma is combined with body-mind complex. As long as we is combined with body-mind complex, we must pray. But otherwise, if you say that Atma does not get birth, etc., then this very moment you are free. No question of taking sadhana करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी महाराज जी, हाँ जी। Got you my question? Answer? हाँ जी महाराज, हाँ जी महाराज जी, हाँ जी। ठीक, अच्छा। हाँ, तो बंद करें? ओम ओम शांति 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 शांति। हरि